ना बोल पाइन ना चिल्लाए पाइन, जो चिल्लाते रहे हुए तब कुल आवाज उनके अंदर जात रहा है तो बाहर ना निकल। हेरे ढूंढे नहीं मिली, सवेरे 5 बजे लाश मिली। कहाँ कहाँ पे बच्चे को नोचा था? लड़का भूख मरा, लड़का दिया हुआ कि बच्चे दे। तभी हम 2 बॉल घुराए, पापा को घुराए तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। I'm standing in the heart of Sisaiya Churamani village of Bahraich district of northeastern Uttar Pradesh. And right behind me is an iron cage waiting to capture one of the wild wolves, a pack of whom have been attacking children and women. At least 9 people have lost their lives due to these wild wolves grabbing children from neck, tearing off their flesh, resulting in their bodies being recovered hours later or even days later. The daily routine of villagers here has changed drastically, with villagers forced to stay awake throughout the nights, from 10 p.m. in the night to 4 a.m. in the morning. They have to stay awake and keep a vigil to ensure that their children are safe. While 9 people have died, most of them happening to be children, there are several other villagers who've been injured and have been lucky enough to evade death. With the news of the deaths in Bahraich district reaching Lucknow and Delhi, the Forest Department and the district administration has ramped up its efforts to ensure that these wild wolves are caught. Sitting on a charpoy in the Kulela hamlet of Sisaiya Churamani village of Bahraich's Mehsi Tehsil, Sheila Devi recounts how she last saw her 8-year-old son Kishan between the jaws of a wild wolf. Kishan was fast asleep on a charpoy when he was lifted by a wolf who tiptoed into her doorless house. इधर से गवा तो ना जान मिला है, तो जब हुआ से कूद कर दहिया गिरा है तब के आवाज में जान मिला है। पाछन पाछे सब कोई दौड़े तो ना ही मिला, गन्नन में घुस गवा तो हम वह थे रहना तक वहाँ से लौटे और तमाम जने रहा, सब घर के रहा, गांव के रहा, सब ढूंढा तब सवेरे 5 बजे पाइन गन्ना में है। जब आपने उसको देखा था उठा के लेकर जाते हुए, तो उस समय क्या वो सर से दबाया हुआ था या फिर गले से पकड़ा हुआ था, मुंह से पकड़ा था, कैसे पकड़ा था? ओका कुल नट्टी के मुहिमा रहा है, गला के मुहिमा रहा है कुल, तब ना बोल पाइन ना चिल्लाए पाइन, जो चिल्लाते रहे हुए तब कुल आवाज उनके अंदर जात रहा है तो बाहर ना निकलता रहा। चिल्ला नहीं पाया बच्चा? ना चिल्लाए पैसे रहा। जी जी। कहाँ कहाँ पे बच्चे को नोचा था? नट्टी काट दी हिस्सा है और थे पखौरा तिरका थोड़ा नोच खाए ली हिस्सा और कुल ना खाए पैसे रहा। पाछन पाछे आदमी चलत रहा तो ना मौका पैसा, बहुत आदमी रहा और नहीं ना होती तो खा लिया। As Sheila screamed for help, scores of villagers woke up to her cries and launched a manhunt for the wolf. The child's body, with some of its parts missing, was found in a sugarcane field a few hundred meters away from her house. Over 3 hours later, villagers say they followed blood marks to search for the wolf, but he escaped after eating some portions of the child's body. यहाँ से ले करके जब चला गया फिर हल्ला दंगा बहुत हुआ, हमारे गांव वाले सभी लोग यहाँ से फाट पड़े, तो उसको वहाँ बगिया से गन्ने में लेकर चला गया। 2-4 जगह थप्पा खून के मिले और उसको हेंदे 2-4 जगह खून के थप्पा मिले, रात को लाश नहीं मिली और बहुत 2-4 सौ लोग अधिकारी भी साथ में हेरे ढूंढे नहीं मिली, सवेरे 5 बजे लाश मिली। खून के धब्बों से आपने ढूंढा? हाँ, खून के धब्बों से। चड्ढी उसकी छोटे लड़का के अलग मिली, बनियाई कहीं अलग मिली है, लाश कहीं अलग मिली। While Kishan and other children, including 4-year-old Sandhya, 5-year-old Ayansh, 3-year-old Pratibha, 5-year-old Khushbu, and 1-year-old Akhtar Raza were killed by a wolf or a pack of wolves that have turned man-eaters, 6-year-old Sonu from Gadamar Khurd village of Mehsi Tehsil was fortunate enough to have been saved by his elder sister, who pulled him out of the grab of a wolf. Her mother explains how she saw a grey wolf escaping from her house after her daughter pulled away Sonu from his grab. बिटिया हमार जागी तब वह चिल्लान, तब वजीफा चिल्लान तो गोड़ फंसा रहा है वरदावन में है, वो नीचे लटकाया रहा खटिया के। तो जैसे वह जागी तो फिर मैंने ध्यान पाई, जैसे हेरे ढूंढ खटिया में ना पाए तो वरदावन में हाथ लागू का तो ऐसा करिया पकड़ के ऐसे से कस पे चिल्लान। कितने बजे की घटना होगी लगभग? वह 4 बजे, 4:30 भोर की घटना? हाँ, भोर के 4:30 बजे।
आप जग रही थी या आपकी नहीं, हम- आपकी बिटिया ने जगाया आपको? नहीं बिटिया चिल्लान तब हम जान पावा, हम नहीं जान पावा। तो मैंने रहा इतना बड़ा कल चिल्ला पर कि का आई मैंने तो कोई मैंने चिल्लाने का तब भाग है बड़ी जोर से छोड़ गई हूँ। नहीं हम देखा भागा तो कहीं से। अच्छा, क्या किस तरीके का था दिखने में? अरे रहा वो मैंने कबरा कबरा। About 18 kilometers from Gadamar Khurd village, in the Kumharanpurva hamlet, 45-year-old Rita Devi was attacked by a wolf who tiptoed into her doorless house and grabbed her from the neck. Her niece attacked the wolf with a brick, but she couldn't be saved. नंदिनी जी, कितने बजे की घटना और क्या देखा आपने? 12 बजे की घटना है। हम सो रही थी, फिर चाचा आए छत पर, बोले हमें खाना दो। फिर हमारी नींद अचानक से खुल गई। फिर हम उस तरफ से लेटी थी, फिर इस तरफ मुँह कर लिया आंगन लंग। फिर हमें परछाई दिखी तो हम उठे जल्दी से। हम कहे ये क्या कुत्ता किसको नोच रहा है। फिर हम दौड़ करके बाहर आई, फिर झाँके, फिर देखे कि हम सोचे कि वो कुत्ता है भेड़िया को। फिर हम उसे दर दर किए तो वो भागा नहीं। फिर तभी हम 2 बॉल घुराए, पापा को घुराए तो हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। फिर हम जल्दी से 2 ईंटें पड़े थे उत्थी, फिर हम उठा करके उसे मारे तो एक ईंटा उसे नहीं लगा। दोबारा हम मारे उसे खूब तेज़ से, तब वो ईंटा लगा, उसे ईंटा लगा कि वो हमारे तरफ देखा। फिर जैसे ईंट लग गई उसे? ईंटा लग गई तभी वो छोड़ा। अच्छा। नट्टी जो पकड़े था ना तभी वो छोड़ा। फिर वो हमारे तरफ देखा, फिर हम अंदर चली गई। फिर जैसे वो हम देखे उसे कि वो बाहर निकल रहा, फिर हम दौड़ करके बाहर निकलने लगे। तैसे ही वो उठ गए रविंद्र। आपने देखा चाची जो नीचे पड़ी हुई थी, उनको कैसे उसने पकड़ रखा था? उसने नट्टी पकड़ के रखा था, गला पकड़ के आगे से पकड़ रखा था? आगे से। अच्छा, कुछ बोल पाई वो? कुछ भी नहीं, सिर्फ छटपटा रही थी बस। सिर्फ छटपटा रही थी जी। जब वो चला गया वहाँ से तो जब आपने उसको मारा तो कुछ गुर्राया आपकी तरफ या नहीं? कुछ भी नहीं कहा हमारी तरफ, सिर्फ देखा था बस। जी। और जब उसने छोड़ दिया चाची को, उसके बाद भी चाची कुछ बोल पाई या नहीं? कुछ भी नहीं बोल पाई। तब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, दादी वादी सब लोग उन्हें पकड़ लिए। फिर वो हाथ पकड़ी थी मेरे और कुछ कह रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था उनके मुंह से। Rita Devi's son says that his mother was struggling to speak even after the wolf let off his grip on her and lost her life within 40 minutes of the attack. पहले मैंने भेड़िए को देखा, उसके बाद मैं तुरंत जब बाहर आया तब मैंने मम्मी को देखा, पर्दे अंगने में पड़ी थी चारपाई के नीचे में, ब्लड काफ़ी बह रहा था। मैं आवाज़ तो कोई भी नहीं आ रही थी, न चीखने की रात न कुछ भी आवाज़, न बोल पा रही थी मैं कुछ भी। आवाज़ बोलने की कुछ के लिए बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। फिर मैंने चाचा जो है वो वन विभाग को फ़ोन लगाए, कहने की ठीक है फ़ोन लगाते हैं। वन विभाग को फ़ोन लगाया चाचा और क्योंकि मैं बेहोश ही गया था, मेरा तबीयत बहुत। फिर चाचा ने फ़ोन लगाया वन विभाग के, तो वन विभाग की गाड़ी एम्बुलेंस को लगाया। पहले एम्बुलेंस नहीं आई, टाइम से नहीं पहुंची। फिर वन विभाग को लगाया, वन विभाग की गाड़ी आ गई। इसमें प्राइवेट ही गाड़ी थी, मैंने कि वो आई। फिर उसमें मैंने उसमें लेटा के मैं फिर अस्पताल ले गए महसी। फिर वहाँ पे ले जाके उनको दवाई बनी, थोड़ा बहुत बोतल सा चढ़ा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में डेथ हो गई। कितने बजे मृत्यु हुई थी? हाँ 12 बजे टाइम क्यों मैंने नहीं देखा, 12:40 से कुछ था। मतलब 40 मिनट के अंदर डेथ हो गई। यहाँ से भी ले जाए, यहाँ भी आवाज़ नहीं आई थी। ब्लड का यहाँ से भी बह रहा था, मैं रास्ते ब्लड बहते गया पूरी सीटों पे, मैंने ब्लड बहुत लग गया। मैंने उठाया था वहाँ पे लगा पूरा ही ब्लड वहाँ रूम में जो हॉस्पिटल रूम है वहाँ पे भी ब्लड पूरा पड़ा था। Forest Department officials say that wolves have been residing in the sandy soil in the river islands of the Ghagra and its floodplains near Mehsi for years, and generally don't attack humans and instead prey on the goats and sheep of the villagers. However, with the area being flooded and their prey animals too either dying or reducing in numbers, they are attacking humans out of starvation, they say. घाघरा नदी कितनी दूर है और उसी के कछार क्षेत्र में इनका रिहायशी है? रिहायशी है। घाघरा नदी यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है यहाँ से। बीच में नाला भी है, बीच में 3-4 नाला। हाँ, बीच में 3-4 नाले भी पड़ते हैं। और ऊपर जो है टापू पड़ता है रहने के लिए। बीच में टापू पड़ता है इनका बीच में। जैसे नदी उस पार है, नदी के बीच में फिर नाला है, नाला के बाद में फिर झाड़ झंखाड़ झाड़ी झपटा है, खर फूस लगा हुआ है और ऊपर बलुई ज़मीन है। तो ये बलुई ज़मीन में ही कहीं ना कहीं अपना बना करके आशियाना उसी में रहते हैं। पानी की भी सुविधा इनको मिल गई, आने जाने की भी सुविधा मिल गई। तो इस तरह से ये रहते हैं, हर साल रहते हैं, हर जगह रहते हैं। और जबकि इनका मेन जो चारा है, मेन खाने के लिए है, वो बकरी है इनका खाने के लिए। तो अब ये चलते रहते हैं, फिर झुंड में रहते हैं।
तो अब जब इनको कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं किसी को पा गए, कोई बच्चा मिल गया या जो है बुजुर्ग कोई मिल गया, जो इनके लिए कभी कभार अगर एक बार ये खा लिए तो फिर दोबारा उसी के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि ये उसमें आदमखोर हो जाते हैं। और अटैक उसी समय ये करेंगे जब ये जानते हैं कि हाँ अब हमको बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है, और यहाँ आकर के गांव के किनारे जब ये जानते हैं कि हाँ गन्ना लगा हुआ है, गन्ने में इनको छिपने के लिए जगह मिल जाती है, रहने के लिए इनको कछार मिल जाता है, नाला है, नदी है, तो रहने के लिए इनके लिए सूटेबल जगह है। तो इसलिए ये अपने आप में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं खामखा ये अटैक करते रहते हैं। इनका यही कार्य जो है वो चलता रहता है। पहले अटैक जानवर नहीं करते थे जी। पहले जानवर अटैक नहीं करते थे। अटैक तो अब इस समय इनका जो कर रहे हैं ये धीरे धीरे यहाँ गए तो इस आदमी को मार दिए, वहाँ गए तो उसको मार दिए, इस तरह से मार करके और फिर घायल करके और चलते रहते हैं ये। Alarmed by the wolf attacks on children and women and their subsequent deaths, Forest Department officials launched an Operation Bhediya in July to catch the pack of 6 identified wolves. Divisional Forest Officer Ajit Pratap Singh says that as many as 25 teams of different departments are searching in Messi to spread awareness among the villagers and for the search operation. While villagers claim to have sighted many more wolves than the 2 wolves yet to be caught, as identified by the Forest Department, the latter says that there are only 6 of them, 4 of whom have already been caught. साई वाली जो बात कह रही हैं कि साई जितने जानवर हैं सभी साई होते हैं। ये कुत्ता फैमिली है। कुत्तों के बीच में और अमूमन जो लोग चरवाहे होते जब जाते हैं अक्सर चरवाहे उनको देखते हैं, ये चरवाहों को देखते हैं, तो मतलब ग्रामीणों में आसपास के लोगों में बहुत ये मिलजुल के टाइप के रहते हैं, परिचित टाइप के रहते हैं। यहाँ तक कि उनकी महक से ये डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेकिन जब बाहरी लोग आ जाएं, जैसे नए नए लोग आए हैं, वहाँ चले जाएंगे तो शायद आप लोगों की महक से वो वहाँ से दूर चला जाए। तो और फिर साई नेचर का है, तभी तो रात में चुपके से जा कर के और बच्चों को लिफ्ट कर रहा है। आदमखोर की बात है तो आदमखोर हो जाते हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो यहाँ पे अभी जो कारण हमको समझ में आ रहा है वो जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट था वहाँ बाढ़ का पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से शिफ्ट हो गए। ये कहाँ पे है हैबिटेट? ये हैबिटेट ये घाघरा जी की जो साइड में कछार है, जो हाईलैंड थोड़ा सा होता है, टापू टाइप का होता है, तो वहीं हैबिटेट इनका। ये कितना दूरी पे है यहाँ से, मैसी से? मासी से नहीं, जहाँ बैठी हैं जो ये गांव में हम हैं। हाँ, ये जहाँ बैठी हैं वहाँ से यहाँ तकरीबन ये तो नहीं, वो तो कछार दूर है। घाघरा जी तो ही बगल में ही बह रही हैं। जी जी। लेकिन जो कछार है जहाँ पर हम हैबिटेट बता रहे हैं वो यहाँ से होगा 7-8 किलोमीटर। वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से, ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से यहाँ पे आ गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। हाँ, वो ज़्यादा जब वो भर गया तो वो गांव की तरफ बढ़े। गांव की तरफ उनका जैसे जब भर जाता है तो वहाँ शिकार भी कम हो जाते हैं। वो भी बिलों में रहने वाले शिकार जो है मर जाते हैं या भाग जाते हैं, वो भी गांव की तरफ आ जाते हैं। जो उनके प्रे हैं, छोटे जानवर जिनको खाते हैं, वो भी भाग आते हैं इधर। तो वो जब गांव की साइड में आते हैं और गन्ना बहुत है, छुपने का स्थान भी उनको मिलता है। तो बाढ़ अगर वहाँ आया है तो गांव के आसपास भी तालाब नाले सब भर जाते हैं। तो उनको उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो शिफ्ट हो जाता है गांव की तरफ। उनको चाहिए फूड, वाटर, शेल्टर, कवर। तो जो चीज़ें जब फूड, वाटर, शेल्टर, कवर उनको गांव के नज़दीक मिल जा रहा है और वहाँ उनका ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो फिर वो उनका ये कहिए नेचुरल हैबिटेट वो शिफ्ट हो गया गांव की तरफ। तो उनका जो फूड है, वो जो लोग बकरियां पालते हैं, भेड़ पालते हैं, वो एक्चुअली निशाना यानी भोजन के रूप में उन्हीं को पसंद करते हैं और उन्हीं का प्रयास भी करते हैं। जैसे बकरी कहीं मान लीजिए बधी है, बगल में एक बच्चा भी लेटा है, तो जब लेटा हुआ बच्चा, बैठा हुआ बच्चा
और एक बैठी हुई बकरी में बहुत डिफरेंस नहीं कर पाता है। वो गलती से उसको लगता है कि ये भी बच्चे को समझता है कि ये भी हमारा शिकार है। वो आदमी को अवॉइड करता है, आदमी को नहीं खाना चाहता। जो उसकी माँ सिखाई होती है खाना, वही खाना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं। Bahraich Divisional Forest Officer says that the reason why one of the wolves or the entire pack may have turned man-eaters is the possibility that they mistakenly attacked a child. तो लेकिन उनसे चूक हो जाती है, सच पूछिए तो उनसे गलती हो जाती है। Do you think कि ये जो अटैक हो रहे हैं ये एक बाय मिस्टेक शुरू हो गया और अब खून मुंह में लग गया? यस, एकदम वही हुआ है और इसलिए नसबच्ची हो गए। The total death toll due to wolf attacks over the past 7 months has reached 10. 2 kilometers from here, a middle-aged woman from Kotia village was also attacked by the same wolf. On Tuesday, 5-year-old Afsana was attacked by a wild wolf in Girdharpurva of Pandoia Gram Panchayat. The child was somehow saved by her family. With the area lacking basic amenities, villagers say that lack of electricity and the resultant darkness helps wolves lift up children easily. They also blame the forest department for not paying enough attention to their complaints earlier. हमारे साथ रसीदा जी मौजूद हैं, वो भी सुगरा जी के घर के पास ही में रहती हैं। रसीदा जी, क्या वजह है यहाँ पे कुछ घरों में बिजली नहीं पहुँच पाई है क्या? बिजली पहुँच ना पात है, गरीबी हालत में बत्ती ना ले मिलत है कि अपन पेट जिया वजह गरीबी में है कि बत्ती के बिल भरा जे सरकार का, वह वजह से ना बत्ती ले पाई थे हम सब। गरीबी की वजह से बिल भरने में आप नाकाम हैं? हाँ। कितना बिल लगता है आपको, कुछ बताया है बिजली विभाग ने? हमसे सबसे कुछ जब बत्ती विभाग वाले उतने ना है साहब, तो हम सब जानकारी का जाने कि कत्ता लागत है कत्ता ना लागत है। कभी आए हैं बिजली विभाग वाले यहाँ? ना आए हैं। हाँ। और 1-2 घरों में बिजली नहीं है, कई सारे घरों में नहीं है? यू टोला पूरा टोला ना है साहब, ये बत्ती हमारे इतने टोला में ना है। अच्छा। हाँ, ये पूरा टोला हम सब गरीब हैं, न खेतवा पे तो हमारे हाइये ना है, तो है डरकन मारे ना लेते साहब। छोटे छोटे खेत भी नहीं है? अरे बिगहा है तो मका है। बहुत छोटे घर हैं, बहुत छोटे घर, बहुत छोटे खेत हैं आपके? हाँ, 1 बीघा खेतवा है तो मका का करी वत्ते में खाऊं भरे गल्ला ना पैदा होत। गरीबी की वजह से नहीं हो पा रहा? गरीबी की वजह से साहब बत्ती हम सब ना लेते। क्या बिल आने की वजह से लोग जो है गरीबी की वजह से नहीं ले पाए हैं? गरीबी वजह साहब ना ले पाए, लड़का भूखन मरे, लड़का जिया में क्योंकि बत्ती दे बिजली के कहाँ से लाग दिया मैं जी खेती पाती हो तो दिए। अब जब हमारे सरकार खेती नहीं है तो कहाँ से हम बत्ती के बिल दिए भाई, और कहाँ से लड़का बच्चन कहाँ दिए। With the death toll due to the wolf attacks in Mehsi Tehsil of Bahraich rising to 10 and at least 37 persons being injured due to attacks that villagers have attributed to wild wolves, at least 10 senior officers of the forest department have been sent to Bahraich to lead the operation to catch the 2 remaining wild wolves who have allegedly turned man-eaters. UP CM Yogi Adityanath on Monday held a high-level meeting with officers from 11 districts on the issue of the rising number of wild animal attacks across East UP. And wildlife experts from Delhi and Wildlife Institute of India are set to arrive in Bahraich. However, villagers say that they have lost faith in the administration as it failed to gauge the seriousness of the attacks in time. Weak economic background of the villagers, along with no electricity in parts of Mehsi Tehsil, has further aggravated the problem, as darkness helps the wild wolves on prowl, say villagers. While the houses of some of the victims have finally got halogen lights, several parts of the Mehsi Tehsil area remain untouched with electricity. In Mehsi Tehsil of Bahraich district of northeastern UP, this is Shikha Salaria for The Print. For more such videos, subscribe to our channel and follow our Twitter and Facebook pages.